اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر قرآن پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ اب آگے اس نشست میں بات کریں گے وحی کی دو قسمیں، یہ بھی اسی سازش کی ایک کڑی ہے۔ وحی کی دو قسمیں بنا دی گئی، وحی دو طرح کی ہے، ایک کو وحی مطلوع کہہ دیا، ایک کو وحی غیر مطلوع کہہ دیا۔ ایک کی تلاوت ہوتی ہے، ایک وحی کی تلاوت نہیں ہوتی۔ یہ بھی قرآن کے خلاف ایک سازش، قرآن کو نیچے لانے کے لیے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس میں شک پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہوا ہے۔ کنہوں نے کیا؟ مفاد پرستوں نے کیا۔ مفاد پرستوں کا میں نے عرض کر چکا ہوں کہ مرکب ایک ہے، تین گروہ ہیں جن کا مرکب ایک بنتا ہے، حکمران ہیں اور عمرہ ہیں اور پھر یہ مذہبی پیشوائی ہے۔ تو انہوں نے یہ سازش رچائی کہ قرآن خالص ان کے پاس، امت کے پاس، لوگوں کے پاس نہ رہے۔ پہلے بھی جو کفار تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ نہیں مانے، پھر کمپرومائز کی طرف آئے، کچھ آپ پیچھے ہٹیں، کچھ ہم پیچھے ہٹتے ہیں، کچھ آپ اپنی بات منا لیں، کچھ ہم منا لیتے ہیں، تو اس طرح کر کے معاملات چلاتے ہیں۔ اس میں بھی ناکام رہے۔ پھر جیسے بھی تو ہن کر ہن، وہ انہوں نے مان لیا، منا لیے گئے، مسلمانوں کی اکثریت بڑھ گئی، مکہ فتح ہو گیا، پھر سلسلہ چل پڑا۔ آپ نے وہ نظام نافذ کر کے دکھا دیا۔ خلافت راشدہ کے یہ نظام چلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک، ان کے شہید ہونے کے بعد بات پھر ایک طرح سے ختم ہو گئی۔ تو پھر اسی گروہ نے ہی، اسی طرح کے گروہ نے وہ اسلام کے نام پر، یہاں جیسے مودودی صاحب فرماتے ہیں، یہاں جاہلیت مسلمان ہو کر سامنے آ گئی اور اس نے اسلام کا لبادہ اڑ کر یہ کام شروع کر دیا جو وہ پہلے کفار کر رہے تھے کہ ان کو قرآن سے ہی دور کر دیا جائے۔ تو وہ سلسلے میں میں یہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ قرآن کی دو قسمیں، ناسخ اور منسوخ کے متعلق یہی عقیدہ نہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو خود قرآن ہی کی دوسری آیت منسوخ کر سکتی ہے۔ یہ پہلے نشست میں ایک بات ہو چکی ہے ناسخ و منسوخ کی۔ صرف اتنی بات ہی نہیں کہ قرآن ہی کی دوسری آیت منسوخ کر سکتی، بلکہ یہ عقیدہ بھی رائج کیا گیا کہ قرآنی آیات کو احادیث بھی منسوخ کر سکتی ہیں۔ ہے نا تعجب والی بات؟ اس پر جب یہ اعتراض وارد ہوا کہ وحی کو غیر وحی کس طرح منسوخ کر سکتی ہے، تو کہا گیا کہ وحی خدا بندی ساری کی ساری قرآن مجید کے اندر ہی درج نہیں۔ یہاں سے ضرورت پڑی دو قسمیں بنانے کی۔ نہ رسول نے کہا، نہ اللہ نے کوئی اس بارے میں فرمایا، کچھ کہا۔ خود ہی انہوں نے یہ اس بات اعتراض کو دور کرنے کے لیے کہ وحی کو غیر وحی کس طرح منسوخ کر سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کر سکتی ہے۔ اب یہ بھی وحی، اس کا بہت تھوڑا حصہ قرآن میں ہے اور کثیر حصہ احادیث میں۔ انہوں نے کہا کہ وحی خدا بندی ساری کی ساری قرآن مجید کے اندر ہی درج نہیں، اس کا بہت تھوڑا حصہ قرآن میں ہے اور کثیر حصہ احادیث میں ہے، یعنی کہ احادیث بھی وحی ہو گئے۔ چنانچہ جمعیت اہل حدیث کے سابق صدر مولانا محمد اسماعیل مرحوم اپنی کتاب کا نام ہے جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث میں لکھتے ہیں، تحقیق و تثبیت کے بعد حدیث کا ٹھیک وہی مقام ہے جو قرآن عزیز کا ہے، اور فی الحقیقت اس کے انکار کا ایمان اور دیانت پر بالکل وہی اثر ہے جو قرآن عزیز کے انکار کا۔
जिब्राइल कुरान और सुन्नत दोनों लेकर नाजिल होते थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत भी कुरान की तरह सिखाते थे। इस लिहाज से हम वही में तफरीक के कायल नहीं, यानी जो वही कुरान में दर्ज है और जो अहादीस में दर्ज है, दोनों अल्लाह ताला की तरफ से हजरत जिब्राइल की वसातत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलती थी, और दोनों का दर्जा और मकाम एक ही है। मौलाना मोहम्मद इस्माइल मरहूम के अल्फाज में जो अहादीस क़वाइद सहीहा और आइम्मा सुन्नत की तशरीह के मुताबिक साबित हों, उनका इनकार कुफर होगा और मिल्लत से खरूज के मतरादिफ या मरातफ बराबर। मदूदी साहब इस बाब में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ उस्ताद की हैसियत से बताया और सिखाया है, वो भी इसी तरह खुदा की तरफ से है जिस तरह कुरान खुदा की तरफ से है। इसको गैर अज कुरान कहना सही नहीं। वो भी कुरान है, उसको गैर अज कुरान, कुरान से खारिज कहना सही नहीं। तफहीमात हिस्सा अव्वल सफ़ा 336। इस सवाल के जवाब में कि वही को इन दो हिस्सों में तकसीम करने का मकसद क्या था, अर्ज किया इन्होंने खुद तकसीम की। कोई ना नबी ने इसको तकसीम किया ना अल्लाह ने तकसीम किया। तो इन आगे मुफस्सिरीन या मुहद्दिसीन जो थे, उन्होंने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया। उसका मकसद बयान फरमाते हैं। वो लिखते हैं कि अगर पूरी की पूरी वही को कुरान करीम में दर्ज कर दिया जाता अपनी तरफ से, ये खुद अपनी तरफ से बयान फरमाते हैं मदूदी साहब, किसी और की तरफ से नहीं, ना अल्लाह की तरफ से, ना रसूल की तरफ से, ना कोई और मुहद्दिसीन हैं उनकी तरफ से। ये जो वजह बयान फरमाते हैं क्या, कुरान मजीद कम से कम इंसाइक्लोपीडिया बरतानिका के बराबर जखीम हो जाता। क्यों दो हिस्सों में तकसीम किया गया? चीज एक ही थी, एक वही कुरान बना दी गई और एक वही अहादीस है। इस सारी को एक ही क्यों नहीं बना दिया गया? वो इसलिए कि ये इंसाइक्लोपीडिया हो जाता और तमाम फ़वाइद बातिल हो जाते जो उस किताब को महज एक मुख्तसर सी असूली किताब रखने से हासिल हुए हैं। ये वही तफहीमात हिस्सा अव्वल सफ़ा 337, उस पर ये उन्होंने फरमाया अपनी तरफ से खुद दो हिस्सों में तकसीम कर दी वही को। है वही अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा, एक हिस्सा कुरान पाक में और दूसरा हिस्सा अहादीस में, और वो ज्यादा है, अहादीस में वही ज्यादा है। ज़िम्नन लगे हाथों आप ये भी देखते जाइए कि यही मदूदी साहब जो ये फरमाते हैं कि वही होने की जहत से कुरान और हदीस में कोई फर्क नहीं। दूसरे मकाम पर इस बाब में क्या इरशाद फरमाते हैं, वो तर्जमान कुरान बाबत सितंबर सन 1952 में लिखते हैं, कुरान के कलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने कलाम में ज़बान और असलूब का इतना नुमाया फ़र्क है कि किसी एक इंसान के दो इस कदर मुख्तलिफ स्टाइल कभी नहीं हो सकते। ये फ़र्क सिर्फ इसी ज़माने में वाज़े नहीं था जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुल्क के लोगों में रहते सहते थे, बल्कि आज भी हदीस की किताबों में आपके सैकड़ों अक़वाल और खुतबे मौजूद हैं। उनकी ज़बान और असलूब कुरान की ज़बान और असलूब से इस कदर मुख्तलिफ है कि ज़बान और अदब का कोई रमज़ आशना नकाद ये कहने की जुर्रत नहीं कर सकता कि ये दोनों एक ही शख्स के कलाम हो सकते हैं। हदीस को देखें, उसका असलूब, और कुरान का देखें, उससे नहीं को कह सकता कि एक ही शख्स का कलाम है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि एक ही का कलाम है, यानी क्या अल्लाह का कलाम है। अगर वही की बात करेंगे तो वही तो अल्लाह की होगी। अल्लाह के ये दो असलूब क्यों हो गए? एक असलूब में कुरान आ गया, एक असलूब में हदीस आ गई।
अल्लाह ने ये दो उसलूब क्यों अपनाए? आपने यहाँ तो पीछे तो फरमा दिया कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हो जाएगा, बन जाएगा, इतनी ज़ख़ीम किताब बन जाएगी अगर वो उस वही को भी इस वही में शामिल कर दिया जाता। आपने कर तो दी और वजह ये बता दी कि इस वजह से, तो अब ये क्यों, ये क्या है बात की, इसकी क्या वजह है कि दोनों में फर्क क्यों है? अल्लाह ताला ने फर्क क्यों दिया, इसकी आप क्या हिकमत बयान फरमाते हैं? वो भी आपने अपनी तरफ से मदूदी साहब ने बयान फरमाई है। और ये किस लिए, इसकी वजह को नहीं बयान फरमाई, इसका सलूक क्यों मुख्तलिफ हो गया? अगर दोनों ही जिब्राइल लेकर आगे पीछे आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि मोहम्मद इस्माइल साहब जो कहते हैं कि हम कोई फ़र्क नहीं करते, हम दोनों में एक ही हैं, तो ये असलूब और ज़बान और अदब का जो फ़र्क है, लहजे जो भी इसको अब कहें, कुरान आप भी समझ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत जानने वाले हैं वो कुरान को पढ़ें और हदीस या रवायत को पढ़ें तो आपको उसके अरबी में फ़र्क का पता चलता है कि ये अगर दोनों ही अल्लाह की तरफ से, फिर फ़र्क क्यों आ गया? इससे यकीनन आपके दिल में ये ख्याल उभरेगा कि मदूदी साहब ने ये मतजाद बातें कैसे कह दी। अगर आपके दिल में ये ख्याल उभरता है तो ये मदूदी साहब के मतलब आपकी नावाकफियत की दलील है। इनके यहाँ तो करीब करीब हर मसला में इस किस्म के तजादात मौजूद होते हैं। इनका आम अमूल यही है। मदूदी साहब का मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, इनका तजाद, इनका फहम और तजाद के हवाले से मेरी वीडियो पहले जस्ट पिछली एक अभी नशिस्त में आपको मिल जाएगी। वहाँ वो क्या फरमाते हैं, किस तरह इनके यहाँ तजाद पाया जाता है, और ये भी आप देख लें कि ये तजाद आपके सामने किस तरह दोनों तरफ चलते हैं। वो कहते हैं ना विकेट के दोनों तरफ खेलना, ये भरपूर तरीके से दोनों तरफ खेलते हैं। जहाँ जो बात फिट आ गई, अपने मन अपना जो बयान करना है उसके मुताबिक माफक हो गई, वो बयान कर दी, उस पर मंतक भी आ गई, वो शगाफियाँ भी अल्फाज की हो गई और सारी लफाजी भी सारी हो गई, कर देते हैं ये मदूदी साहब। ये जो मैंने अब तक बात की है, आपको ये बताया कि ये इन लोगों का ये अकीदा, ये अहले हदीसों का ही नहीं, मदूदी साहब का ही नहीं, बरेलवियों का भी यही, देवबंदियों का भी ये अकीदा है। दो किस्म की ये रवायात हदीसों का मैं आगे अर्ज करता हूँ। देवबंदी भी कैसे ये सारे इसी एक ही अकीदा रखते हैं। अब इस अकीदे का अबताल बातल होना, ये अकीदा, ये मैं आपको कुरान शरीफ की एक आयत आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। एक आयत तो कोई मानी नहीं रखती, आप उसको रद्द करने के लिए अब जो आप अक्सर ये होता है, आपने एक ही मकाम को देख लिया और बहुत सारे मकाम हैं उनको आपने देखा ही नहीं, और बस ये मतलब है वो मतलब है करके उस बात को रद्द कर देते हैं। अब जब बात इतनी वाज़ेह हो तो फिर उसमें आप किस तरह आप इस तरह कर सकते हैं, ये मतलब है या वो मतलब है। ये मेरे भाइयों सूरत इनफाल है और इसकी 67 नंबर है, 67 नंबर, मुश्किल लफ्ज है, 67 नंबर, एक 66 होता है और आगे 67 नंबर और आगे 68, 67 नंबर आयत जो है अनफाल की, ये आप पढ़ लें, आप देख लें, तफहीमुल कुरान को खोल के देख लें और जो भी तर्जमे हैं आपके पास उसको आप देख लें। इसमें उसका तर्जमा मैं ये कुरान पाक जो सऊदी अरब से आता है, यानी कि वो उधर जो इधर हमारे गैर मुकल्लद हैं, वो उनका मौक़िफ़ और उनका और अरब वालों का मौक़िफ़ एक है। वो गैर मुकल्लद नहीं है, वो मुकल्लद है, वो मालकी हैं, मालिक के मानने वाले हैं, उनके मुकल्लद हैं, लेकिन ये गैर मुकल्लद कहलाते हैं। मौक़िफ़ इनका एक जैसा ही है, पसंद करते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। तो क्या ये है तर्जमा इसका? अब मैंने जहां सिर्फ बात बयान करना चाहता हूं कि हदीस भी वही है। अब ये मैं तर्जुमा पहले पढ़ दूं आपके सामने। नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहें, नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक कि मुल्क में अच्छी खून रेजी की जंग ना हो जाए। तुम तो दुनिया के माल चाहते हो और अल्लाह का इरादा आखिरत का है,
اور اللہ زور آور باحکمت ہے۔ یہ انفال کی 67 نمبر آیت کا ترجمہ۔ اس نے تھوڑی سی تفسیر بھی بیان کی ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ کفر و اسلام کا چونکہ پہلا مارکا تھا، اس لیے قیدیوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، ان کی بابت احکام پوری طرح واضح نہیں تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گنجائش تھی۔ یہ میں ان کی دیکھ کے قرآن پاک سے پڑھ رہا ہوں، جو تفسیر ہے انہوں نے تشریح کی ہوئی ہے۔ اسی لیے دونوں ہی باتیں زیر غور آئیں، لیکن بعض دفعہ جواز و عدم جواز سے قطع نظر حالات و ظروف کے اعتبار سے زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ضرورت زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی تھی، لیکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کم تر صورت اختیار کر لی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب نازل ہوا۔ یہاں پر آگے بھی ہے، میرا بیان کرنا آپ مطلوب یہ ہے کہ جب یہ بھی وہی ہے، جب حدیث بھی وہی ہے، جب آپ نے مشاورت سے فیصلہ کر لیا تو وہ وہی کے ذریعے کیا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں میں کیا الفاظ استعمال کروں، کیا بولوں، کیا یہ بات اتنی مشکل ہے کہ جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ نبی نے ایک فیصلہ کیا قیدیوں کے بارے میں اور وہاں مشاورت سے کیا، مشاورت کا حکم ہے، نبی نے اس حکم کو پورا کیا اور کرنے کے بعد فیصلہ کر دیا، ان کو لے کر چھوڑ دیا۔ پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے، یہ اس فیصلے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عطاب نازل، یعنی کہ وہ فیصلے کو پسند نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کم اعلیٰ فیصلہ مانا اس کو۔ حالانکہ بعد میں بھی یہ اس طرح قیدیوں کے بارے میں ایسا ہوتا رہا ہے، قیدیوں کو فدیہ لے کر یا جزیہ لے کر یہ جو بھی اس کے عوض چھوڑ دیے جاتے، قیدیوں کے بدلے قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مگر یہ اس وقت کی بات ہے، جنگ بدر کی، پہلے مارکے کی۔ یہاں میں بتانا صرف آپ کو چاہتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے، جو میں نے عرض کر چکا ہوں آپ سے پہلے، مودودی صاحب کا بھی اور وہ محمد اسماعیل صاحب بھی، جو اہل حدیثوں کے جو بڑے ہیں، ان کا بھی، کہ یہ ہم کوئی فرق نہیں کرتے دونوں میں، یہ دونوں ہی وہی ہیں، حدیث بھی وہی ہے اور قرآن بھی وہی ہے۔ مودودی صاحب نے آگے ان کی منطق ہے ماشاءاللہ زبردست، کو پھر بتاتے ہیں کہ اگر اس کو بھی اس قرآن کے ساتھ ملا دیا جائے، ملا تو دیا ہے میرے بھائی آپ نے، کیوں نہیں ملایا؟ کتابیں ہی الگ الگ ہیں نا، تفسیر کی بھی کتنی جلدیں ہوتی ہیں، تو اس کی بھی جلدیں بن گئی۔ آپ کی تفہیم القرآن کی پتہ نہیں کتنے جلدیں ہیں، اور بھی جو لوگوں نے تفسیریں کی کئی جلدیں ہیں ان کی، تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے اپنی طرف سے ایک لاجک ڈالی کہ انسائکلوپیڈیا برطانیہ بن جائے گا، اس لیے ان حدیثوں والی جو وحی ہے اس کو الگ کر دیا، اس کو الگ کر اور ملا دیا ایک طرح سے، قرآن کے ہم پلہ کر دیا، قرآن اور روایات و حدیث کو ایک پیج پر آپ لے آئے، ایک صفحے پر لے آئے، جیسے کہ ہم کہتے ہم پلہ کر دیا۔ یہ مودودی صاحب نے کیا، اور میں نے قرآن پاک کی آیت سے ان کے اس نظریے کا ابطال کہ باطل ہے یہ عقیدہ ان کا، جن کا بھی ہے یہ عقیدہ، جن کا بھی ہے باطل ہے، اس میں اہل حدیث بھی شامل ہے، دیوبندی بھی شامل ہے، اور مقلد اور غیر مقلد اور بریلوی سب شامل ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کرتا ہوں کہ میں عالم نہیں، مگر اتنی سینس ہے کہ بات کو دیکھ کے پڑھ کے سمجھ سکوں۔ میں نے آپ کے سامنے بات جو رکھی ہے، تو آپ غیر عالم کی بات کو آپ دیکھیں، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی فرق نہیں کرتے حدیث میں اور قرآن میں۔ مختصر بات اتنی ہی ہے نا۔ حالانکہ مودودی صاحب دونوں طرف چلتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسلوب اور ادب میں وہ لے آئے، وہ بھی داخل کر کے ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ملتا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اسلوب کو کیوں تبدیل کیا؟ اللہ نے جو زبان کا اسلوب اور ادب ہے اس کو کیوں تبدیل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب میں ہی رہتے،
जो हदीसें हैं वो भी उसी सलूब में आती, और जो कुरान की आयत हैं वो भी उसी सलूब में आती। नहीं है ना मेरे भाइयों, ये एक जैसी नहीं है। मैं कुरान की आयत से आपको बता दिया इंसान की। वैसे भी मैं आप देखें कि ये अगर ये कुरान के बराबर होती तो आप इन्हें कुरान की तरह ही डील करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि मदूदी साहब खुद फरमाते हैं। मैं अर्ज कर चुका हूं पहले भी। वो कहते हैं कुरान को हड्डियों पर, पत्तों पर, ठीकरियों पर और मुख्तलिफ पार्चों पर, कागज के पार्चों पर, तख्तियों पर लिखा गया। तो ये हदीसें भी लिख देते आप उसी तरह, वो एक थैले की शक्ल में। हालांकि आप इन चीजों को अगर सामने लाएं फिजिकली, पत्तों पर लिखा हुआ, हड्डियों पर लिखा हुआ कुरान मुनासिब पढ़ने वाला, तो वो थैला नहीं बनेगा, वो तो एक बोरा बन जाएगा, पूरा बहुत बड़ा सारा बोरा बन जाएगा। बहरहाल वो इन्हें फरमाते हैं कि इस तरह ये थैला कुरान नबी मस्जिद नबी में था जब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। तो आप अहादीस का भी इस तरह का एक थैला बना देते, लिख देते इसके पर ये अहादीस है। इसमें क्या, अगर आप इसको समझते कि ये हदीसें भी दीन में हुज्जत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ये 67 नंबर ही आता है किसकी, मायदा की, या रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक, अबलाग कर दे जो आप पर नाजिल हुआ। तो आपने कुरान के अबलाग के लिए क्या किया, एक थैला बना दिया, जिस तरह बनाया वो मदूदी साहब खुद फरमाते हैं। तो फिर जो दीन ज्यादा, जो कुरान ज्यादा है वो हदीस में आप कहते हैं, तो उसका थैला क्यों नहीं बनाया? कोई बात आती है समझ में आप, उसका थैला क्यों नहीं बनाया? वो भी हुज्जत है, दीन के बराबर, कुरान के बराबर है। आप कहते हैं हम कोई फर्क नहीं करते, दोनों बराबर। नबी ने तो फर्क किया, नबी ने कुरान का तो थैला बना के मस्जिद नबी में रहा, वो भी गलत बात है, वो भी गलत बात मैं कहता हूं। लेकिन चले आप कहते हैं कि ये थैला बना के रख दिया, तो इनका भी थैला बना के रख देते अगर ये दीन, ये भी कुरान का, ये भी वही होती। हाँ जी, और अल्लाह ताला मतलब अब हिफाजत वाली बात जो है उसको पता नहीं ये कैसे करते हैं कि हमने ये जिक्र को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। क्या हिफाजत हो रही है? उसके 250 साल बाद जाकर लिखी गई है वो। अच्छा खैर, मुझे नहीं समझ आती, मैंने आपको बता दिया ये बातिल कीदे का कुरान की आयत की रूह से। आगे चलते हैं जी। हाँ, बहरहाल कह रहे थे कि कुरान करीम के मतलब कीदा ये भी वजह किया गया कि वही खुदाबंदी सारी की सारी कुरान ही में दर्ज नहीं, यही बात की है ना। वही का मुतद्दबा हिस्सा, ज्यादा हिस्सा, आप ये भी अंदाजा लगाएं, ज्यादा हिस्सा अहादीस में दर्ज है। इसीलिए अहादीस को मिसले ही मा आहू कहा जाता है, कुरान की मिसल, इसलिए इसको कहा जाता है। अभी बुखारी शरीफ को इसलिए कहा जाता है कुरान की मिसल, यानी कुरान की मिसल। इसके साथ ये अलग बात है कि मिसले ही माहू के मजमूए हर फिरके के अलग अलग है। कुरान तो एक है सबके सामने, आगे जो ये मिसल है ना, मिसले ही माहू, ये हर एक के अलग अलग है, ये अपने अपने हैं। अब देखिए यहां भी देखिए कुरान की खिलाफ वर्जी कुल्लम कुल्ला। कुरान ने काफिरों को चैलेंज किया कि तुम कहते हो कि ये नबी ने अपनी तरफ से गढ़ लिया, अपनी तरफ से बना लिया है इस कुरान को, तो तुम भी बना लो और इकट्ठे कर लो सारे अपने आलम, तुम सब मिलकर कर लो, तुम भी इस तरह की एक ऐत बना लो। ऐत कहा, चले आप भी कोई कुछ बना लें इस तरह का मिलता जुलता कोई ले आए। साथ ही कुरान ने कह दिया, अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। फरमाया कि तुम ऐसा नहीं, इसकी मिसल नहीं ला सकोगे। हम ले आए, आपके सामने है ये सारी, ये मिसल ही माहू जो है, जो किताबें हैं सहा ये कुरान की मिसल है। जैसा कि मैंने पीछे आपको अर्ज कर चुका हूं, यह हदीस और कुरान में कोई फर्क नहीं है, दोनों वही है, बात ही खत्म कर दी। ये मैंने बताया कि ये कुरान के खिलाफ बात। आगे देखिए फिर मजीद मैं थोड़ी सी और वजाहत कर दूं। आपने गौर फरमाया कि अकीदा की रूह से बात क्या बनी, एक आयत पहले जिक्र किया था, वो आगे फिर मैं ये है सूरत अनकबूत की 51 नंबर आयत। अल्लाह ताला ने कफार के इतराजात के जवाब में कहा था कि क्या कहा था, जब उन्होंने कहा, अब आयत नहीं है सारा कुछ, अवलम यकफिहिम अन्ना अनज़लना अलैकल किताबा
युतला अलैहिम, ये अनकबूत की 51 नंबर आयत है। क्या वो किताब जिसे तू इनके सामने पेश करता है इनके लिए काफी नहीं? ये अल्लाह ताला पूछ रहा है कि इनके लिए काफी नहीं थी काफी उनके लिए, इसीलिए तो कहते थे कि इसमें तरमीम कर दो कुछ। ये जो जो यूनुस की सूरह यूनुस की 15 नंबर आयत है, तो वो यही बात कहते थे, इसमें कुछ थोड़ी सी तरमीम कर दो, कुछ तुम अपनी बात रख लो, कुछ हमारी बात मान लो, इसमें या तो नया कुरान ले आओ या इसमें तरमीम कर दो। ये जी सूरत, जैसा कि मैंने अर्ज किया, अनकबूत की 51 नंबर है। एक और है, वो भी पहले अर्ज कर चुका हूं, यहां फिर मैं अर्ज कर देता हूं। ये मोमिन की 12 नंबर आयत है। क्या है? जालिकुम बे अन्नाहु एजा दो ए यल्लाहु वहदाहु काफरतुम व इन युशरक बेही तुमिनून। जब इन्हें खुदाए वाहद की तरफ दावत दी जाती है तो ये इसके कबूल करने से इनकार करते हैं, और जब इसके साथ इंसानी कवानीन मिला दिए जाएं, यानी जब शिरक किया जाए तो इसे तस्लीम कर लेते हैं। युशरक बेही तुमिनून, फिर ही मान लेते हैं। आप अंदाजा खुद देख लें क्या हुआ। जो ये इसके साथ कुछ और भी चाहते हैं, वो कफार ये चाहते थे कि इसके साथ कुछ और भी चाहिए, खालिस कुरान नहीं, कुछ और साथ चाहिए। ये वही ग्रोह है कुरान मजीद से अलग और खारिज। दूसरी वही के अकीदे के मानी ये हैं कि खुदा की किताब इंसानी रहनुमाई के लिए काफी नहीं। देवबंदी कितने वाज़े लफ्जों में कहते हैं कुरान को अकेले ना पढ़ो, वो तो अकेले ना पढ़ो कहते हैं। ये भी नहीं कहते कि चले आप हदीसों को साथ मिला लें, नहीं, बंदा कोई दूसरा आपको पढ़े फिर पढ़ना है। आप अकेले पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये काफिर क्या कहते थे उस वक्त, जो मैंने अर्ज कर दी 51 में, क्या वो किताब जिसे तू इनके सामने पेश करता है इनके लिए काफी नहीं? ये किताब काफी है? देखल नहीं, वो कहते हैं मिसले ही माऊ, वो भी साथ है, वो हदीसें भी वही है, वो भी लाजमी है। और मोमिन की आपके सामने 12 नंबर आयत मैंने अर्ज कर दी। कुरान खालिस जब पेश किया जाता है तो माथे पे शिकन आ जाते हैं, हाँ जी, पेशानी पे शिकन आ जाते हैं। और जब को साथ मिला दिया जाए, हैं, साथ क्या मिला दिया जाए? हदीसों को मिला दिया जाए, रवायात को मिला दिया जाए, तो उस पर ईमान ले आते हैं। वही ईमान चल रहा है, वही इस्लाम चल रहा है। इसके साथ उसकी मिसलहु माहु, कुछ और की भी जरूरत थी। वो यही कहते हैं ना। दूसरी वही के अकीदा के मानी ये हैं कि खुदा की किताब इंसानी रहनुमाई के लिए काफी नहीं, इसके साथ इसकी मिसलहु मिसलही माहु, कुछ और की भी जरूरत थी जिसे इस दूसरी वही ने पूरा किया। आपको मालूम है कि अब कुरान मजीद को इंसानी रहनुमाई के लिए काफी समझने वालों के मतलब क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जी? कोई बंदा खालिस कुरान की बात करे तो उसे क्या कहा जाता है? मुनकर हदीस परखने का म्यार। ये हजरात आमतौर पर कहते हैं कि हम उसी हदीस को सही मानते हैं जो कुरान करीम के मुताबिक हो, लेकिन ये भी सही नहीं। माहनामा फिक्र नज़र की दिसंबर सन 1965 के इशात में लिखा गया कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई हदीस मेरी निस्बत बयान की जाए तो उसका मुकाबला किताबुल्लाह से करो। अगर कुरान के हुक्म के मुताबिक हो तो कबूल करो, वरना इसे छोड़ दो। ये सरसाला बेचारा लिख बैठा। वाज़ेह है कि ये बात जो मकाला इस पर जमात अहले हदीस के तर्जमान अल इस्तिसाम लाहौर ने सख्त एहतजाज किया और अपनी 23 जनवरी सन 1970 की अशात में लिखा। ये तो इन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बात कर दी कि आप ये फरमाया है आपने कि मेरे कौल के कुरान के सामने पेश करो, हाँ जी, कुरान तो इसका मुकाबला किताबुल्लाह से करो। अगर कुरान के हुक्म के मुताबिक हो तो कबूल करो, वरना इसे छोड़ दो। इस पर एहतजाज किया इन्होंने अहले हदीसों ने। वाज़ेह है कि ये बात जो मकाला नगार ने लिखी है जितनी बड़ी क्या लिखी है,
बड़ी शोहरत पजीर है, इसी कदर ये बड़ा झूठ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे लगाया गया। वाकया ये है कि जिस जमाने में ये रवायत गढ़कर रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब की गई, यही कि मेरे हुक्म को कुरान के मुकाबल करो, उसी दौर में माहिरीन फन हदीस आइमा कराम ने बबांगे दोहरा ऐलान कर दिया था कि ये हरगज हरगज फरमान रसूल नहीं, रद्द कर दिया इस फरमान रसूल को, बल्कि ये इबारत जंदाका गुमराह लोगों का वजह करता है। जंदीक जिसे हम बोलते हैं उसकी जनादाका गुमराह लोगों की वजह करता है। चुनांचे चौथी सदी के नामवर फकीह मुहद्दिस इमाम खताबी ने तशरीफ फरमाई है। आगे हवाले हैं काफी सारे, तज़किरतुल मौज़ूआत लिल फितनी सफ़ा 28 है, और मौलाना अब्दुल हई लखनवी हनफी की नफरुल आमानी ये सफ़ा 267 पर 67 पर, नीज जामे बयानुल इल्म ला बिन अब्दुल बर जिल्द 2 में सफ़ा 191। बात वाज़े रहे, यानी जब इन हजरात के कीदे की रूह से हदीस कुरान को मनसूख कर सकती है तो इनके मुताबिक कुरान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखिए कुरान के साथ जुल्म, यही बात मैं अर्ज करना चाहता था, आपके सामने रखना चाहता था कि हम कुरान के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, ये मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब आप देख लें, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, जो समझ में ना आए दो बना दी किस्में वही की, एक वही को हदीस करार दे दिया और दूसरी को कुरान करार दे दिया, खुद ही वजूहत बयान कर दी। इस तरह क्यों किया? अब देख लें मेरे भाइयों, दीन का ये लोग क्या शिरक कर रहे हैं और कितनी इन्होंने खिदमत की है। इस इमाम मदूदी साहब ने दीन की आपके सामने, आप देख लें। मैं और क्या बताऊं, आगे भी बताऊंगा इंशाअल्लाह, इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि इनके तजादात यकीन करें मुझे परेशान करते हैं। मैं ऐसे अंधा हो कि किस तरह मैं बात को मान लूं, मैं आलम नहीं हूं, लेकिन बात समझ में तो आती है ना, जो मैंने आपके सामने रख दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।